Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Clear? See, up to now we have covered the exercise of chapter number 13 of class 9, surface area and volume, from exercise 13.1 to 13.4. See, these exercises were based on surface area, that is curved surface area, total surface area, open surface area. Clear? This all were based on surface area. Now we will start with the exercise which is based on volume. Clear? In this exercise number 13.5, we are going to discuss about the volume of cube and cuboid. So let's go with the formulas based on this. So volume of cube, that is a cube, volume of cuboid, that is LBH. ये दो formulas आपको याद रखने हैं mainly. Volume of cube, that is a cube, and volume of cuboid, that is LBH. So main thing, अब तक हमने जो सीखा आप लोग ने देखा ही होगा. अगर नहीं विजिट किया है तो प्लीज गो थ्रू ऑल दी वीडियोस. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट, सारे के सारे वीडियोस में कवर किया हुआ है सब कुछ, फॉर्मूलाज एंड ऑल. फर्स्ट वीडियो के अंदर सारे फॉर्मूलाज मैंने एक्सप्लेन किए कि क्या फॉर्मूलाज किस बेस पे हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 13.5. बट मेन थिंग याद रखना है, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट. अगर आपको डाउट है तो डाउट कमेंट कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन में डाउट है या सो एंड सो डाउट है. और अगर सब कुछ समझ में आता है तो अंडरस्टूड इट, इतना कमेंट करना जरूरी है. बाकी तो आप एक्स्ट्रा आप जो भी चाहो वो कमेंट कर सकते हो, बट लाइक शेयर एंड कमेंट इतना चीज आप करते रहो. और सब्सक्राइब तो करके ही रखना चैनल, ताकि नियर फ्यूचर में आगे और कोई अपडेट्स है तो आपको मिलते रहे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. A matchbox measures 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. What will be the volume of the packet containing 12 such box? Simple है. First of all, length, breadth and height. Length 4 centimeter, breadth 2.5 centimeter and height is 1.5 centimeter. Now volume of the matchbox equals to LBH. And 4 into 2.5 into 1.5, so 4 into 2.5 means 10, 10 into 1.5 यानी 15 centimeter square. Now what is said, 12 सच बॉक्स अगर है, एक पैकेट है जिसके अंदर ऐसे कितने 12 बॉक्सेस, टोटल 12 बॉक्सेस आर एडेड. सो वी विल गेट therefore volume of the matchbox is 15 centimeters cube. Now volume of 12 such matchbox equals to 15 into 12, that is 180 centimeter cube. Therefore the volume of the 12 matchbox is 180 centimeter cube, या फिर packet that contains 12 such box is 180 centimeter cube. क्यूबॉइड में LBH अगर दिया हुआ है तो इट्स क्वाइट इजी, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस करना, बाकी सब कुछ सेम. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. A cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. LBH दिया है. How many liters of water can it hold? तो पहले से दिया हुआ है 1 meter cube equals to 1000 लीटर. 1 मीटर क्यूब कितना है? 1000 लीटर. तो उसके बेस पे अगर हम लोग देखें तो लेंथ इक्वल्स टू 6 मीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 5 मीटर, हाइट इक्वल्स टू 4.5. सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, दैट इज V इक्वल्स टू LBH, क्योंकि क्यूबॉइडल टैंक है. LBH, so 6 into 5 into 4.5, so 6 5s are 30, 30 into 4.5, that is you will get 15 1 12 15 12 12 plus 1, that is 135 meter cube. Clear? So volume is 135 meter cube. लेकिन अब इसमें क्या है, 1 meter cube equals to 1000 liter, तो we have to convert it in liter. So given that 1 meter cube equals to 1000 liter, therefore given cuboidal water tank can hold up to 1,35,000 liters of water. कितना? 1,35,000 of liter water वो hold कर सकता है. Okay, चलिए समझ में आ रहा है, क्लियर है? एनी डाउट? जस्ट रिमेंबर, डिजिटल मैथ्स का कमेंट बॉक्स आपके लिए रेडी है. डिजिटल मैथ्स हमेशा आपके लिए साथ देगा. सो जस्ट अपना डाउट, कोई भी डाउट, एक्स वाई जेड जो भी डाउट है आपको लगता है, you just put on your doubts and we will try to solve it out as soon as possible. Question number 3. A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. 10 meter long means length दिया हुआ है, breadth दिया हुआ है, ठीक है. Now how high must be what made to hold 380 cubic meter of liter, यानी उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ cuboidal vessel is 380 meter cube. Now volume equals to LBH, so 380 upon 10 into 8 equals to H. आपको height मिल जाएगी. So 10 0 से 0 cut, so your height would be nearly about 4.75 meter. So let's see. So H equals to 4.75 meter. Therefore, the height of the vessel is 4.75 meter.
समझ में आ रहा है ना? जस्ट स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करना है, बाकी और कुछ नहीं। एलबीएच वॉल्यूम लगाना है, खत्म। पाई की कोई झंझट नहीं, कोई मगजमारी नहीं। क्यूब और क्यूबॉइड सबसे इजी है, जिसमें पाई आता ही नहीं है, तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाइट, यानी डीप मतलब हाइट हो गया, एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। अब खाली the length 8 meter, breadth 6 meter, height, so volume of the cuboidal pit is lbh. So 6 into 8 into 6 into 3, that is we can say 48 into 3, so 4 5 24 3 12 144 144 meter cube. ठीक है, now what is it, उसको होल को या पिट को डिग करने के लिए ₹30 पर मीटर क्यूब, तो कॉस्ट पर मीटर क्यूबिक वॉल्यूम इक्वल्स टू ₹30, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब इक्वल्स टू ₹144 into 30, सो 144 into 30 अगर कर रहे हैं तो वी विल गेट ₹4320, यानी वॉल्यूम आपका जो पिट है उसका हो गया 144, और 144 इंटू अगर 30 कर दो तो जीरो तो एज इट इज रख दो 234, ठीक है, 4320 रुपीस, इतना पैसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। भाई कैपेसिटी दिया हुआ मींस वॉल्यूम इज गिवन। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड द डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इट इज गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक दैट इज 50,000 लीटर। सो देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, सो 1 अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। सो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 50,000/1000 मीटर क्यूब, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, सो 50 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आपका कितना आ गया 50 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच होता है, क्यूबॉइडल टैंक है। ब्रेथ आपको फाइंड करना है, तो B इक्वल्स टू 50/2.5 इंटू 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 2.5 2 जा, सो ब्रेथ आपकी आ गई 2 मीटर। So let's see, length 2.5, height, depth यानी 10 meter, volume of the tank that is LBH, so LBH equals to 2.5 into 5 meter, 25 B meter cube, ये हम लोग ने फाइंड किया। Now capacity of the tank equals to 25 B meter cube, which is equals to 25,000 B liters. So also capacity of the cuboidal tank is 50,000 liters of water. So 25,000 B equals to 50,000। इन्होंने क्या है, पहले हम लोग ने क्या किया, इसमें लीटर्स में सबको कन्वर्ट किया, इसकी जगह आप जैसा चाहो, जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हो, इट्स नॉट एन इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू कैन गो विद इट। सो B equals to 2, therefore breadth of the tank is 2 मीटर। दोनों ही तरीका वैलिड है, आप रिवर्स करके वो वाला मेथड अगर इजी लग रहा है तो वो मेथड देखो, अगर आपको लगता है दिस मेथड इज इजी, सो यू कैन गो विद इट, बोथ मेथड आर वैलिड, बट आई थिंक कि डायरेक्ट साथ साथ में हो जाए, कैपेसिटी ऑफ टैंक साथ साथ में हो जाए तो तुरंत हो जाएगा। तो LBH equals to 50,000 लीटर्स, उसके बेस पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a village having population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day। एक दिन में एक आदमी को 150 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए, नहाना धोना कपड़ा वपड़ा जो भी वॉट एवर इट इज, एंड टोटल 4,000 पॉपुलेशन है। It has a tank measuring 20 meter, 15 meter and 6 meter. For how many days will water of this tank last? तो इसको मैं मेरा मेथड से बताता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा जो मेथड मैंने टाइप करके रखा है उस मेथड से, दोनों ही सेम भी हो सकते हैं। सी 4,000, फर्स्ट ऑफ ऑल 150 liters per head, so total population, total water required per day, total water required per day equals to 150 into 4,000, that is equals to 0,000 and 60, then 60,000 लीटर्स चाहिए, उसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो that is equals to 600 मीटर क्यूब, 600 मीटर क्यूब आपको चाहिए पर डे। ठीक है, अब इस टैंक में जितना पानी है वो कितने दिन चलेगा, सो वॉल्यूम ऑफ टैंक equals to 20 into 15 into 6, that is equals to 300 into 6, यानी हो गया 1800 मीटर क्यूब। So number of days equals to volume of tank upon water required per day, so that is equals to आपका जो आंसर आएगा 1800 upon 600, so 3 days तक पानी चल सकता है। समझ में आ रहा है?
ये रफली मैंने कैलकुलेट करके बताया किस तरह से करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो total population 4000, consumption of water per day per head equals to 150 liters. So water consumed by people in one day equals to 4000 into 150, that is 60,000, 6 lakhs. ठीक है, 6 lakhs आपका ये हो गया. ठीक है, 6 lakhs liters of water. Now, the capacity of the tank C equals to L into B into H. So 20 into 15 into 6, ये जो tank दिया हुआ है, tank के capacity, that is equals to 1800 meter cube, that is 18 lakh liters. ठीक है, पहले हमने दोनों को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो या दोनों को लीटर्स में कन्वर्ट करो, that is up to you. So water consumed by all the people in days equals to capacity of tank. तो 16,000 per day, एक दिन में इतना लीटर आपको यूज कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ डेज डी इक्वल्स टू 18,000 अपॉन 16,000, सॉरी 18 लाख, 18 लाख अपॉन 6 लाख, तो लाख से लाख जीरो चले गए एंड 6 3s are 18, so 3 days. Therefore the water of this tank will last for 3 days. कितने दिन तक हम लोग वाटर टैंक में से पानी ले सकते हैं? for 3 days. 3 days हम लोग लास्ट वाटर करेगा. समझ में आ रहा है? वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को देखो, हर एक चीज को समझो, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. A go down measures 40 meter into 25 meter into 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the go down. देखो सिंपल इजी ट्रिक मैं बताता हूं. नंबर ऑफ crates equals to वॉल्यूम ऑफ गो डाउन का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट. ठीक है, एक क्रेट का वॉल्यूम से पूरे वॉल्यूम के गो डाउन को डिवाइड कर दो. सो 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5. सारे के सारे डेसिमल्स निकाल देता हूं. तो 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 1.5 का 15 करूंगा तो 10 ऊपर जाएगा. 1.25 का मैं 125 कर रहा हूं तो 100 ऊपर जाएगा. एंड 0.5 का सिर्फ 5 करता हूं तो इट वुड बी 10 अबव. सो 5 2s are 10, 15 3s are 15 से 15 कैंसिल, 25 5s are 5 2s are 10. क्लियर? सो आंसर आएगा आपका 40 into 2 into 100 into 2, that is equals to 280, 80 into 200, that is 16,000. How many crates can be placed in the go down? That is 16,000. Let's see. First of all, volume of cuboid, that is go down equals to 40 into 25 into 15. So 15,000 meter cube. ये इन्होंने मल्टीप्लीकेशन किया है. मैंने डायरेक्टली कर दोगे तो आपको कैलकुलेशन इजी पड़ेगा. डायरेक्ट मींस दिस वन, n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गो डाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रेट. ये डायरेक्टली कर दोगे तो आपको डायरेक्ट इजी मिलेगा. सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट इक्वल्स टू 1.5 into 1.25 into 0.5, that is 0.9375 meter cube. So volume of n wooden crate equals to volume of go down. So n equals to 15,000 upon 0.9375, that is 16,000. देखो इसको डिवीजन करना इट्स बिट टफ. इंस्टेड आप डायरेक्टली ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो. यू विल गेट दिस. सो 16,000 crates. Therefore, total number of wooden crates that can be stored in the go down is 16,000. 16,000 wooden crates हम लोग go down में स्टोर कर सकते हैं. क्लियर? समझ में आ रहा है? दोनों मेथड्स को ध्यान में रखो. आपको जो मेथड समझ में आए उस मेथड से फॉलो करो. यहाँ पे इन्होंने क्या है, पहले वॉल्यूम ऑफ गो डाउन फाइंड किया, फिर वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट फाइंड किया और डिवाइड कर दिया. सो आपको अगर वो मेथड पसंद आता है यू कैन गो विद दैट, और अगर वो मेथड समझ नहीं आता है तो यू कैन फॉलो दैट कि डायरेक्ट 40 इंटू 25 इंटू 15 करके डिवाइड बाई कर दो ये. सो यू विल गेट बोथ दी मेथड्स. जो मेथड इजी लगे आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 8. A solid cube of solid side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, एक बहुत बड़ा सा क्यूब है, इस क्यूब को टोटल 8 छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर डिवाइड किया, छोटे स्मॉल 8 क्यूब्स. ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 8 क्यूब्स. तो आई कैन राइट वॉल्यूम ऑफ big cube equals to 8 into volume of small cube. क्योंकि 8 क्यूब्स में कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है,
a cube that is equals to 8 into a1 cube, ठीक है। सो 8 क्यूब, सो a इक्वल्स टू, इसका 12 है, हम लोग लिख सकते हैं 12, तो 12 की जगह हम लोग लिख देते हैं 12 क्यूब, 12 अपॉन क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू a1 क्यूब, सो a1 क्यूब इक्वल्स टू 12 अपॉन 8, 12 का क्यूब अपॉन 8, तो 12 अपॉन 12 का क्यूब अपॉन 8 मींस 2 का क्यूब होता है, दैट इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2 होल क्यूब, सो दैट इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब, तो a1 क्यूब इक्वल्स टू 6 क्यूब, तो a1 इक्वल्स टू 6, यानी जो स्मॉलर क्यूब है उनकी साइड क्या हो गई 6, समझ में आया, स्मॉलर क्यूब की साइड क्या हुई 6, इसी तरह से फाइंड करना। सो लेट्स सी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 12 क्यूब दैट इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब, cube is cut into 8 small cubes of equal volume, say side of each cube b, so volume of small cube equals to b cube, so b cube equals to 1728 upon 8 centimeter cube, upon 8 क्यों किया है because total 8 cubes थे, तो एक ही क्यूब का करना है तो divide by 8, so 216, so b cube equals to 6 centimeter। दोनों क्यूब का अगर हम लोग करते हैं तो हमें सेकंड वाले स्मॉल क्यूब का रेडियस साइड मिल गया, दैट इज 6 centimeter। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो 6a स्क्वायर या फिर 6a स्क्वायर अपॉन 6b स्क्वायर, तो 6 से 6 कैंसिल, a स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर और 6 स्क्वायर b मतलब 6 स्क्वायर, तो 12 मींस 12 into 12, 6 into 6, तो 6 2 are 12, 6 2 are 12, तो that is equals to 4:1, ये क्या हो जाएगा 4:1। so look here, the ratio of surface area equals to surface area of bigger cube upon surface area of smaller cube, so 6a square upon 6b square, so 12 square upon 6 square, that is 4/1, therefore required ratio is 4:1। देखो मैं आपको पता नहीं आपको स्लो लग रहा है फास्ट लग रहा है, लेकिन पहले मैं रफली समझाया, रफली आपको समझ में आया, उसके बाद में वापस फिर भी समझा देता हूँ ताकि आपको पता चले, और ऐसा लगे तो थोड़ा सा स्लो करके, आपका कंट्रोल आपके हाथ में है, स्लो कर सकते हो, यू कैन गो विद स्टेप बाय स्टेप, पॉज करके आराम से देखो, वन बाय वन स्टेप देखो, आपको इजीली मिल जाएगा। क्लियर? सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A river 3 meter deep and 40 meter wide is floating at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into sea in 1 minute? देखो समझना क्वेश्चन को पहले, इसमें हाइट दी हुई है, that is 3 मीटर डीप मतलब हाइट, 4 मीटर 40 मीटर वाइड मतलब ब्रेथ दी हुई है। नाउ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, उसकी लेंथ बोल सकते हो 2 किलोमीटर पर आवर की है, हमें क्या चाहिए पर मिनट, सो 2000 मीटर अपॉन 360 मिनट, तो ये कैंसिल करते हैं तो 200 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 3 मीटर पर मिनट, मतलब ये उसकी लेंथ ले सकते हो, ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई, दैट इज लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से एक मिनट में कितना पानी सी में जा रहा है कर सकते हैं। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इनटू बी इनटू एच, सो 100 अपॉन 3 इनटू 40 इनटू 3, सो 3 से 3 कैंसिल, 40 इनटू 3 दैट इज 4000 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को अगर हम लोग लीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 4000 इनटू 1000 यानी 40 lakhs liters, so therefore 4000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल फॉल इनटू सी इन अ मिनट। अगर लीटर्स में बोला होता तो आप लिखते 40 lakhs liters ऑफ वाटर इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर इतना पानी, कितना 4000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फॉल्स इनटू द सी, रिवर के थ्रू जो होता है ना, रिवर क्या होता है समुद्र में जाके, ये सी जो है उसके अंदर से रिवर फ्लो होते हुए पानी जाता है, तो ये समुद्र में 4000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर मिनट गिर रहा है, पर मिनट। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वापस हम लोग मिलेंगे जल्दी ही 13.6 एक्सरसाइज के साथ, और मेन थिंग हमेशा बोलता हूं, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब तो जरूर कर ले एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स, और कमेंट करो, डाउट है तो भी कमेंट करो, डाउट नहीं है तो लिखो आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, या जो भी चीज है समझ में आ गई, बस इतना सा लिखना है। क्लियर? So thank you very much, we'll be soon, डिजिटल मैथ्स हमेशा आपके साथ है, आपके पास है। क्लियर? ऑलवेज आस्क द डाउट, कोई भी डाउट हो कहीं से भी हो, यू कैन आस्क मी आउट। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।